آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ بے ایہم و اقتدیتم و اہتدیتم، نبی فرماتے ہیں تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، ایک کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا۔ صحابہ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت میں لیٹی ہوئی ہیں۔ اچانک آپ کی نظر آسمان کے تاروں پر پڑتی ہے۔ عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج، میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کدھر گئیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی ساری نیکیاں ابو عمر فاروق اعظم کی ہیں، اور جتنے تارے ہیں اتنی بڑی ایک نیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دوسرے خلیفہ بننے کے بعد جو بھی سنتا تھا عمر خلیفہ دوم بن گئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں دہشت بیٹھنے لگتی ہے، لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ عمر بن خطاب خلیفہ ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ لیکن امیر المومنین عمر بن خطاب نے خلافت کے کاموں کو جو انجام دیا، دنیا فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ آج بڑے بڑے سیاستداں اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں کہ 33 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، کپڑوں پر پابند لگے ہوئے تھے، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن سادگی کا یہ عالم تھا۔ لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے کہ امیر المومنین کی سادگی کا جب یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کی سادگی کا عالم کیا ہوگا؟ یہی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے کچھ منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے سوچا تھا اسلام مٹ جائے گا، اسلام کے نام لیوا نیست و نابود ہو جائیں گے،
लेकिन इस्लाम तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, इस्लाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आखिर इस्लाम को मिटाया कैसे जाए? इस्लाम के जो नाम ले रहे हैं, इस्लाम का जो नाम ले रहे हैं, उन्हें रोका कैसे जाए? कुफारान मक्का, मुनाफिकों ने आपस में मीटिंग की, करने के बाद कहते हैं कि आए लोगों सुनो, जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब को कत्ल करेगा उसे बहुत इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। एक यहूदी खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद कहता ठीक है, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब को माज़अल्लाह कत्ल करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाए। लोगों ने कहा ठीक है, इनाम तो तुझे दिया जाएगा, लेकिन यह बता तो उमर को कत्ल कैसे करेगा? उमर कोई बकरी का बच्चा नहीं जिसे तू कत्ल कर दे। उमर को कत्ल करना आसान नहीं है। उमर वो है कि जिनकी दहशत का यह आलम है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। शेर में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सर उठाकर बकरी की तरफ देख ले। उमर वो है जिनकी दहशत के आगे कैसरो किसरा के ताजिर, जिनकी दहशत के आगे कैसरो किसरा के ताजिर अपने सर को खम करने के लिए तैयार हैं। उमर वो है जिनकी हुकूमत में किसी पर जुल्म सितम नहीं हुआ है। ये बता क्या तू उमर को कत्ल कर देगा? वो यहूदी कहता हां कत्ल करूंगा। का तूने प्लान कैसे बनाया? तेरा मंसूबा क्या है? कैसे अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करेगा? अब वो कहता सुनिए, मेरा तरीका यह है कि मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी रखूंगा, सर पे टोपी लगाऊंगा, इस्लामी रंग में रंगूंगा, इस्लामी लिबास पहनूंगा, उन्हीं में घुल मिल जाऊंगा, नमाजें उनके पीछे पढ़ूंगा, जोहर उमर के पीछे पढ़ूंगा, असर उमर के पीछे पढ़ूंगा, मगरिब उमर के पीछे पढ़ूंगा, इशा उमर के पीछे पढ़ूंगा, फज्र उमर के पीछे पढ़ूंगा, और पढ़ने के साथ साथ उमर बिन खत्ताब के शबो रोज पर नजर रखूंगा। यानी दिन में कहां जाते हैं, रात में क्या करते हैं। जब मुझे मौका मिलेगा मैं उमर का काम तमाम कर दूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा मैं उमर बिन खत्ताब को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने इतना कहा, लोगों ने कहा तेरा प्लान सही है, तेरा मंसूबा बहुत बेहतर है, इस तरीके से तू उमर को कत्ल कर सकता है। कहा ठीक है। घर से निकला, सर पे टोपी लगाई, इस्लामी रंग में रंग गया, इस्लामी लिबास पहना, मुसलमानों में जाकर के मिल गया। जोहर उमर के पीछे पड़ता है, असर उमर के पीछे पड़ता है, मगरिब अमीरुल मोमिनीन के पीछे पड़ता है, इशा अमीरुल मोमिनीन के पीछे पड़ता है, फज्र अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के पीछे पड़ता है। शब रोज पर नजर रखता है कि उमर दिन में क्या करते हैं, रात में कहां जाते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का यह मशगला था। आप रोजाना दोपहर का खाना खाने के बाद खजूर के बाग में जाते थे कैलूला करने के लिए। इसलिए दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर कैलूला कर लेना, यह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। अब वो शबो रोज पर भी नजर रखता है, उमर कहां जाते हैं, क्या करते हैं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब का वो तरीका देखता है, दिल के अंदर ख्याल करता है, उमर तो वो है कि सारी लोग इनकी बातों पर अमल करते हैं। उमर को कत्ल करना आसान नहीं है। मैंने लोगों से वादा किया है, मैं उमर को माज़अल्लाह कत्ल जरूर करूंगा। एक दिन उसने ख्याल किया कि उमर रोजाना खजूर के बाग में जाते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, कोई इनके साथ नहीं होता है, तने तन्हा ही आराम करते हैं। लिहाजा उमर के बाग में पहुंचने से पहले पहले
हम बाग में पहुंच जाएं और इनका काम तमाम कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस यहूदी ने मंसूबा बनाया। बनाने के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के पहुंचने से पहले खजूर के बाग में पहुंचता है, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। इधर दोपहर का वक्त हुआ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद खजूर के बाग में जाते हैं, हाथ का तकिया लगा के सुन्नत के मुताबिक आराम करने लगते हैं। सो गए। अब वो यहूदी मुनाफिक खजूर के पेड़ पर बैठा था। उसने देखा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब सो गए हैं। चारों तरफ देखता है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। अतराफो जवानिब में नजर डालता है, कोई दिखाई ना दिया। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, जब कोई दिखाई ना दिया, खजूर के दरख्त के नीचे से खजूर के दरख्त से उतरता है। उतरने के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के करीब गया। जाने के बाद दिल में कहता है, उमर जो मैंने मंसूबा बनाया था आज मैं कामयाब हो गया हूं। उमर देखे तुम्हें आज मुझसे कौन बचाएगा। तलवार को न्याम से निकालता है, फिर चारों तरफ देखता है, अतराफो जवानिब में नजर डालता है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। तलवार को न्याम से निकाला, कत्ल करने के लिए करीब पहुंचा तो क्या देखता है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब का तवाफ जंगल का शेरे बबर कर रहा है। और इतना ही नहीं, जब जंगल का शेरे बबर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के पैरों के पास पहुंचता है, कदमों को चूम लेता है, कदमों को बोसा भी जंगल का शेरे बबर दे रहा है। अब वो यहूदी शशो पंज में डूब गया। अब क्या किया जाए। मैंने अभी देखा था दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, अचानक ये जंगल का शेरे बबर कैसे आ गया है। ये तो इनका तवाफ कर रहा है। सिर्फ तवाफ ही नहीं, इनके कदमों की तरफ जब जाता है, जाने के बाद इनके कदमों को चूमता भी है, इनके कदमों को बोसा भी देता है। उसने तलवार को न्याम से निकाल लिया था, तलवार को फेंक दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब बेदार हुए। होने के बाद कहते हैं, ए यहूदी ये बता, मैंने तुझसे कोई कलाम नहीं किया है, मैंने तुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की है, ये बता अब तूने कलमा क्यों पढ़ लिया है। तू तो मेरे पीछे नमाजें पढ़ता था, जोहर भी पढ़ता था, असर भी पढ़ता था, मगरिब भी पढ़ता था, इशा भी पढ़ता था, फजर भी पढ़ता था, मेरे साथ भी सफर करता था। लेकिन ये बता अब तू क्यों कलमा पढ़ रहा है, क्या तूने पहले कलमा नहीं पढ़ा था। अब वो यहूदी कहता है, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब सुनिए, मैंने पहले कलमा नहीं पढ़ा था, मैं आपको कत्ल करना चाहता था, इसीलिए मैं आपके रंग में रंग गया था, इसीलिए मैं आपके पीछे नमाजें पढ़ने लगा था। लेकिन उन नमाजों के साथ साथ आपके शबो रोज पर भी नजर रखता था। हुजूर वाला मैंने कलमा इसलिए पढ़ लिया, मैंने दूर दूर तक देखा कोई नजर नहीं आ रहा था। जब मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आपका सर तन से जुदा करने के लिए आपके करीब आया तो मैंने देखा जंगल का शेरे बबर आपका तवाफ कर रहा है। और इतना ही नहीं, जब वो आपके कदमों की तरफ पहुंचता है, कदमों के पास जाता है तो वो आपके कदमों को चूमता भी है, कदमों को बोसा भी देता है। हुजूर वाला मैंने कलमा इसलिए पढ़ लिया है, ये उमर वो है जिनकी हिफाजत परवरदिगारे आलम, जिनकी हिफाजत परवरदिगारे आलम जंगल के शेरे बबर से करवा रहा है, तो उमर को कत्ल करना आसान नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए कैसी हुकूमत थी। गरीबों का ख्याल रखते, अमीरों का ख्याल रखते, बीमारों का ख्याल रखा करते थे। कोई भूखा तो नहीं, कोई परेशान हाल तो नहीं, कोई मजबूर तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल फरमाने के बाद हजरत उमर खलीफा बनने के बाद आप एक मर्तबा
लोगों की खैरियत मालूम कर रहे थे। देखा कि चंद बच्चे एक जगह पर खड़े हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि फला मोहल्ले में एक ऐसा शख्स है जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, आंखों की जिसके बीनाई जा चुकी है, कई रोज से उसने खाना नहीं खाया। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, बच्चों के करीब गए, पता पूछा, पूछने के बाद उसी नाबीना के घर गए। जाने के बाद कहते हैं भूख लगी है? उसने कहा हाँ। खाना खिलाया। बिस्तर गंदा था, बिस्तर धुल दिया। लिबास गंदा था, लिबास धुल दिया। दूसरा लिबास पहना दिया। भूखा था, खाना खिला दिया। और जब खाना खिलाया तो उस वक्त वो नाबीना कहता है, ये बताओ कई रोज से वो शख्स नहीं आ रहा है जो हर दूसरे दिन मेरी खिदमत के लिए आया करता था, क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है? कई रोज से वो आया नहीं, मेरा बिस्तर गंदा देखता था, बिस्तर धुल देता था, लिबास गंदा देखता था, लिबास धुल दिया करता था, हर दूसरे दिन मुझे खाना खिलाने के लिए आया करता था, क्या तुम्हें मालूम है वो कौन था? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब फरमाते, मुझे ये तो नहीं पता वो कौन था, अलबत्ता इतना जानता हूं कि तुझ जैसे कमजोरों की खिदमत करना ये अबू बकर सिद्दीक की आदत में दाखिल था, इसलिए मुझे लग रहा है कि तेरी खिदमत करने के लिए अबू बकर सिद्दीक ही आया करते होंगे। उन्होंने कहा, तूने सच कहा है, इसलिए जब वो आया करते थे, जब वो हमारे घर की दहलीज पर कदम रखा करते थे तो उनके कदमों की खुशबू हमारे घर पे आ जाया करती थी, उनके सदाकत की खुशबू हमारे घर पे आ जाया करती थी। अब वो नाबीना कहता, तुम्हारा क्या नाम है? अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, लोग मुझे उमर कहते हैं, मैं इस वक्त खलीफतुल मोमिनीन हूं। इतना सुनना था, वो नाबीना कहता है, ऐ उमर सुनो, तुम आज पहली मर्तबा आए हो, तुमने अपना नाम भी बता दिया है, अपना पता भी बता दिया है, और वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिन्होंने 4.5 साल तक मेरी खिदमत की है, मेरे कपड़ों को धुला है, मुझे खाना खिलाया है, मैं उनसे नाम तक पूछता था लेकिन उन्होंने अपना मुझे नाम तक नहीं बताया है। अल्लाह अकबर। नाबीना ने कहा था, उमर तुम पहली मर्तबा आए हो, तुमने अपना नाम भी बता दिया, अपना पता भी बता दिया। इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन गैरों से बहुत मोहब्बत करते थे, रातों को सोते नहीं थे, लोगों की खैरियत मालूम किया करते थे। सुभान अल्लाह, लोगों की खैरियत मालूम किया करते थे। यही हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। शान देखिए हजरत उमर की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस रास्ते से मेरा उमर निकल जाए उस रास्ते से शैतान का गुजर नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, अगर नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, क्योंकि नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका। नबी फरमाते, अगर नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता तो वो उमर मेरे बाद नबी होता। अल्लाह अकबर। शान देखिए हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की। एक मर्तबा रात के वक्त में एक औरत सफर कर रही थी, सफर करती हुई जा रही थी। उमर बिन खत्ताब ने अपने चेहरे पर पर्दा डाल के उस औरत से पूछा, अय औरत ये बता, रात के वक्त में तने तनहा तुम सफर कर रही हो, रात के वक्त में गलियों में घूम रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो उस औरत ने कहा था, क्या है नौजवान सुनो, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या तो तुम खुद उमर हो जो हमसे सवाल कर रहे हो, इसलिए उमर के होते हुए कोई औरत को छेड़ दे, औरत की तरफ नजर उठा के देख ले, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या शान थी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की। यही उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। एक मर्तबा मदीना शरीफ के अतराफ जवानिब में रात के वक्त में घूमा करते थे। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु सफर कर रहे हैं, मदीना शरीफ के बाहर निकल गए, लोगों की खैरियतें मालूम कर रहे। खैरियत मालूम करते 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 मदीना शरीफ के बाहर निकल गए। क्या देखते हैं, रात के वक्त में एक नौजवान रास्ते के किनारे खड़ा जारो कतार रो रहा है, जारो कतार रो रहा है।
उमर बिन खत्ताब उसके करीब गए। जाने के बाद कहते, नौजवान, सारे लोग चैनो आराम की नींद सो रहे हैं, लेकिन ये बता तू ज़ारो कतार रो क्यों रहा है? वो नौजवान कहता, या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने पूछा, नौजवान बता तो आखिर तू रो क्यों रहा, रोने का सबब क्या है? वो नौजवान कहता, या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने पूछा, नौजवान बता तू रो क्यों रहा है? आज हमारे हालात क्या है कि अगर हम किसी को रोता हुआ देखें तो हम हंसते हैं, हम सोचते हैं बर्बाद हो जाए, बहुत अच्छा है। उमर बिन खत्ताब ने पूछा, नौजवान ये बता, रात के वक्त में सारे लोग सो रहे, तू क्यों रो रहा है? अब वो नौजवान कहता, या शेख बात यह है, सामने जो तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है, इस झोपड़ी में मेरी बीवी है जो दर्द ज़ह में मुब्तला है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो चुका है। कमजोरी के सबब मैंने दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है। औरत दर्द की वजह से चीख रही है, चिल्ला रही है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। मैंने दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है कि अब क्या होगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नौजवान परेशान ना हो, यहीं पर खड़ा रहना, मैं अभी आ रहा हूं। घोड़े को एड़ लगाई, अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आवाज आती, कौन का? मैं उमर हूं, आपकी अहलिया मोहतरमा रात के वक्त में उठती हैं, दरवाजा खोलती हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने अपनी बीवी को अपने घोड़े पर बिठाया, लेकर के चलने लगते हैं। आपकी बीवी ने पूछा था, अरे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, ये तो बताओ तुम मुझे लेके कहां जा रहे हो? हजरत उमर ने कहा था, अभी नहीं बताऊंगा, वापस आके बताऊंगा मैं तुझे लेके कहां गया था। लेकिन अगर आपकी मेहरुआ हो, आप रात के वक्त में अचानक दरवाजे पर आ जाए, उससे कहे चल, आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने अहलिया मोहतरमा को अपने घोड़े पर बिठाया। बिठाने के बाद उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर नौजवान ज़ारो कतार रो रहा था। आपने अपनी बीवी को घोड़े से उतारा। उतारने के बाद कहते, मेरी अहलिया सुनो, सामने जो तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है, इस झोपड़ी में एक औरत है जो दर्द ज़ह में मुब्तला है। इसके शोहर ने कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है। जाओ तुम दाई बनने का हक अदा कर दो, आकाए करीम राजी हो जाएंगे, मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे। इतना कहा आपकी अहलिया मोहतरमा उस झोपड़ी में जाती है। जाने के बाद क्या देखती है, वाकई औरत दर्द ज़ह में मुब्तला है। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो जाता है, कुछ ही देर में बच्चे की विलादत हो जाती है। आपकी अहलिया मोहतरमा झोपड़ी से बाहर आई। आने के बाद कहती, हुजूर वाला, औरत के घर पे लड़के का जन्म हुआ है, चलिए मुझे घर तक छोड़ दीजिए। उमर बिन खत्ताब ने अपनी अहलिया मोहतरमा को घोड़े पर बिठाया। बिठाने के बाद चंद कदम आगे बढ़ते हैं, आवाज आती है, ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब सुन ले, जा तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जा मैं भी तुझसे राजी हो गया हूं, मेरा परवरदिगार भी राजी हो गया है। सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन हैं जो गैरों की इतनी मदद करते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के दरवाजों पर जाया करते थे, हालात पूछते थे, कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मायूस तो नहीं है। आदि दुनिया के बादशाह अमीरुल मोमिनीन, आलम मालूम क्या था, अपनी पुश्त पर, अपनी पीठ पर अनाज का कट्टा लाते थे, अनाज की बोरी लाते थे, लोगों के घरों तक पहुंचाया करते थे। अल्लाह अकबर। अनाज की बोरी लाद करके लोगों के घर तक पहुंचाते थे। ये शान है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु की। यही अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु है। जब खलीफा बने, कैसरो किसरा के ताजिर को मालूम चला, उमर खलीफा बन गए, उमर खलीफा बन गए। कैसरो किसरा के ताजिर ने जब सुना तो डर की वजह से उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। यार शान देखिए मुस्तफा के गुलामों की, सहाबा की शान देखिए। रहते हैं मदीने में, कैसरो किसरा के ताजिर के साथ, कैसरो किसरा के बादशाह के सामने अगर कोई नाम ले लेता था, उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे, सारा जिस्म पसीने में शराबोर हो जाता था।
कैसरो किसरा के बादशाह ने ताजिर को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है, ऐ ताजिर जाओ तुम मदीना चले जाओ। कहा क्यों? कहा मैंने जब से सुना है उमर अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, उमर खलीफा बन गए हैं, मेरे जिस्म के रोंगटे डर की वजह से खड़े हो जाते हैं। अगर कोई मेरे सामने उनका नाम ले देता है तो मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो जाता है। जाओ तुम पता लगा के आओ उमर अपने साथ कितने बॉडीगार्ड रखते हैं, उमर के साथ हिफाजती दस्ता कितना है, जाओ तुम पता लगा के आओ। इतना कहा कहने के बाद कैसरो किसरा का ताजिर कैसरो किसरा से चला। चलने के बाद मदीना शरीफ आता है, लोगों से मुलाकात करता है। करने के बाद कहता है कि ये बताओ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का शाही महल कहां है? लोगों ने कहा सामने जो तुम्हें झोपड़ी नजर आ रही है, टूटी फूटी जो झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में बैठ करके उमर बिन खत्ताब फैसला फरमाते हैं, इसी झोपड़ी में बैठ करके फैसला करते हैं। कैसरो किसरा का ताजिर दंग रह गया, शशोपंज में डूब गया कि झोपड़ी में बैठ करके फैसला करते हैं। मैं तो सोच रहा था कि बहुत बड़ा उनका शाही महल होगा। इनकी दहशत का यह आलम है कि कैसरो किसरा के ताजिर, कैसरो किसरा के बादशाह के सामने अगर कोई नाम ले लेता है तो उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये झोपड़ी में बैठ करके आराम कर रहे हैं। पूछा वो कहां है? लोगों ने बताया मस्जिद नबी शरीफ में होंगे। गया, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात ना हुई। फिर पता पूछा वो कहां है? लोगों ने बताया उमर ने दोपहर का खाना खाया है, वो खजूर के बाग में आराम कर रहे होंगे। यह अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब से मुलाकात करने के लिए खजूर के बाग में जाता है। दिल के अंदर इसके ख्याल था कि उमर अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, आधी दुनिया के बादशाह हैं। बाग के चारों तरफ हिफाजती दस्ता होगा, बाग के चारों तरफ बॉडीगार्ड लगे होंगे। लेकिन जब यह कैसरो किसरा का ताजिर बाग में पहुंचा तो क्या देखता है? हजरत उमर तने तनहा हाथ का तकिया लगा के सुन्नत के मुताबिक खजूर के बाग में आराम कर रहे हैं। देख करके दंग रह गया। दिल में ख्याल करता ये मामला क्या है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के करीब जाता है। जाने के बाद हजरत उमर का चेहरा देखता है, देख करके कलमा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब बेदार हुए, इरशाद फरमाते नौजवान ये बता तूने मुझे देख करके कलमा क्यों पढ़ लिया है? मैंने तुझसे कोई कलाम नहीं किया है, कोई तुझसे गुफ्तगू नहीं की है, मैंने अभी इस्लाम के बारे में तुझे बताया नहीं है। वो कैसरो किसरा का ताजिर कहता है हुजूर वाला मैंने कलमा इसलिए पढ़ लिया है कि आप तने तनहा खजूर के बाग में आराम कर रहे हैं, आपके नाम की दहशत का यह आलम है। अगर कैसरो किसरा के बादशाह के सामने आपका नाम ले दिया जाता है तो उसके जिस्म से पसीना निकलने लगता है, डर की वजह से जिस्म के सारे रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं। हुजूर वाला मैंने कलमा इसलिए पढ़ लिया है कि जब मदीने के अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की सादगी का यह आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत की सादगी का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन से सच्ची मोहब्बत करो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन से सच्चा प्यार करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। इस्लामी भाइयों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा जिनके बारे में सरकार ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे के सारे सहाबा आसमान के तारों की तरह है। बेअय्यहिम इक्तदैतुम वही तदैतुम, तुम इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे, एक की भी इत्तबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। बेशक ये हक है। सहाबा की जिंदगी को देखिए, उनका चलना फिरना देखिए कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा है। इस्लामी भाइयों, हमारा तो नारा ये होना चाहिए, नगर नगर डगर डगर अबू बकर अबू बकर। हम जितना अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं उतना ही उमर फारूक आजम को मानते हैं, उतना ही उस्मान गनी को मानते हैं, उतना ही मौलाए कायनात को मानते हैं और इंशाअल्लाह मानते रहेंगे। नबी के खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, खलीफे दोम हजरत उमर फारूक आजम है, खलीफे सोम हजरत उस्मान गनी है, खलीफे चार
मुकर्रम हजरत अली कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हम नबी के चारों खुलफा से सच्ची मोहब्बत करें, नबी के खुलफा से सच्चा प्यार करें, नबी के सहाबा की मोहब्बत अपने दिलों में बसा ले। इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहेंगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाएंगे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।